آج جب ہم آزادی کی 79ویں برس مکمل کر چکے ہیں اور 80ویں یوم آزادی کل منانے جا رہے ہیں، لیکن اسی درمیان ہمارے ملک کے کئی حلقوں سے ہمارے نوجوان آزادی آزادی کی نعرہ لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان آزادی کے 80 سال بعد بھی آزادی کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے؟ آج ہم اسی سوال کو جاننے کے لیے سماج کے مختلف طبقات سیاست سے بھی ہے، ثقافت سے بھی ہے اور سماجی خدمات سے ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو جنزی ہے وہ آزادی چاہتا ہے۔ سوال یہ کس چیز کی آزادی چاہتا ہے؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ 80 سال گزر جانے کے بعد بھی بھگت سنگھ نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہمارے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انگریز سے رات لے کر کسی حوالدار یا کسی جاگیردار کے ساتھ حوالے خدمات کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے اس آزادی سے عام آدمی کو، کسان کو اور نوجوانوں کو کیا فائدہ ملتا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1951 کی کراچی اجلاس میں پورے جو آج کے سماجواد کا اور مساوات کا برابری کی قرارداد پاس کی گئی، تو ان قرارداد کو بنیاد بنا کر آزادی آئین بھی ہو رہا تھا، آئین بن رہا تھا، اس پہ یہ بات خیال رکھا ہے۔ لیکن 80 سال گزر جانے کے بعد بھی آئین کے تمام دفعات کو مساوات کہا گیا تھا، اس برابری کا اور سماج کے ہر ایک طبقے کو آزادی کا احساس لانے کی جو کوشش کی گئی وہ آج اس سے دور نظر آ رہا ہے۔ آخر ہم کہاں ناکام رہ گئے، کہاں پہ بھگت سنگھ کا خواب، گاندھی کا خواب، سبھاش چندر بوس کا خواب پورا نہیں ہو پایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ 3 اہم مہمان ہیں۔ پہلے مہمان ڈاکٹر فواد حلیم صاحب ہیں جو اہم سیاسی شخصیت بھی ہیں اور سماجی خدمتگار ہیں۔ دوسری شخصیت جناب شہباز اختر صاحب ہیں جو نیوز کے ایڈیٹر ہیں، اور تیسری شخصیت مہاشکر سمجھدار صاحبہ ہیں۔ یہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں اور سماج کے لیے سڑک اتر کر لڑنے والی شخصیت ہے۔ آپ تینوں کا انصاف نیوز نیٹ ورک پہ خیر مقدم ہے۔ سر پہلا میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے نوجوانوں کا وہ آزادی چاہتے ہیں، اس آزادی نعرے سے ایک بڑا طبقہ جو رائٹنگ کو فالو ہوتی ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی کوئی کہتے ہیں کہ جو نوجوان آزادی کی بات کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، کس چیز کی آزادی چاہیے اور آج اس آزادی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے 2 چیز ہے۔ پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ ہمارے 1947 سال میں جو ارتھ ویوستھا جس میں غریب اور امیر میں جو فرق تھا وہ فرق آزادی کے بعد گھٹنے لگا۔ امیر اور غریبوں میں وہ جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ کم ہونے لگا اور وہ فاصلہ پھر بڑھنے لگا 2014 سال کے بعد۔ 2024 میں یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ 1947 میں جو امیر اور غریب میں فرق تھا وہ ہم نے پار کر دیا۔ تو آج 2026 میں انگریز حکومت کے وقت میں جو یہاں کے فیکٹری مالک تھے، جو انگریز کی طرف سے یہاں پونجی پتی تھے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، ان کی جو ملکیت تھی وہ ملکیت کی بنیاد پر غریبوں سے ان کا جو فاصلہ تھا وہ آج ہندوستان میں کہیں اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو جو بنیادی حقیقت ہے وہ اور امیروں وہ آزادی سے پہلے وہ بات کر چکے ہیں، اور وہ جو غربت ہے وہ غربت اور غریبی اس کی بنیاد ہے۔ اس وقت جب یہ آزادی ہوئی تو یہ جو جو قانون تھا، یہ انتظام تھا، اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی اور آواز کو ایک نعرہ کا شکل میں وہ سامنے لائے، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ چندر شیکھر نے اپنا نام کے ساتھ جوڑ کر کے چندر شیکھر آزاد بنے، مولانا ابوال کلام صاحب اپنے نام سے وہ الفاظ کو جوڑا اور مولانا ابوال کلام آزاد بنے۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس نے اپنا لشکر کے نام رکھا آزاد ہند فوج، اور ہمارے ادھم سے جب 1940 میں جلیانوالہ باغ کے جو گورنر تھے وہ ڈائر صاحب کو خون کرتے ہیں انگلینڈ میں، انگریزوں کے سرگوشی میں ان کو خون جب کرتے ہیں گولی مارتے ہیں، اور انگریز ان کو گرفتار کر کے لے گئے، پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ وہ فخر سے سر اٹھا کر کہتا ہے کہ میرا نام ہے رام محمد سنگھ آزاد۔ تو یہ جو آزاد اور آزادی الفاظ ہیں یہ اس وقت حکمران جو تھے ان کے خلاف لوگوں کو باندھنے کے لیے یہ الفاظ تھا۔ غربت، غریب، محنت کش لوگ سب ایک ہوئے تھے،
सरफरोशी की घटना उनकी इलाज में था और आज वो सूरत-ए-हाल यहाँ के हुक्मरान फिर पैदा कर चुके हैं और फिर वही अल्फाज सामने आ रहे हैं। अंग्रेज आज़ाद और आज़ादी के लफ्ज़ से चिढ़ते थे और आज के हुक्मरान और इंतजाम में एक ही चिढ़ का वो लोग मिजाज दिखा रहे हैं। लड़ाई उस वक्त में लड़ाई मीडियम मेरा आपसे सवाल ये है कि बंगाल में अगर 377 को भी गाली दे रहे हैं कि कुर्बानी पर भी उंगली उठा रहे हैं, ऐसे में बंगाल में तालाबों की धमकी रही है, यहाँ एक से बड़ी बड़ी सबसे पैदा हुई खुद आज़ाद का काम भी इसी से। तो बंगाल में सुप्री इजहार राय के फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या खतरा लायक है? ये आपके साथ आज आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको धरना नहीं करने दे रहा है, किस तरह सर्वाइव कर पाइएगा? मेरे ख्याल से अभी का जो माहौल है वो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत दिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ये जो लास्ट जो पार्लियामेंट सेशन किया उसमें तो कितना डरे हुए हैं ये रूलर्स। ये जो यंगस्टर्स जो आगे है वो हमारा जो अभी जो सिचुएशन है इस इधर का वो बहुत दिन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमारा आज का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शॉकिंग है। हम इतना दिन हम जो 15 साल हमारा देख चुके हैं जो बहुत ही करप्शन की है, लेकिन उस टाइम में हम लोग 2024 में जब अभया का कहानी हुई थी उसमें हम लोग जो रात का कुल 18 नाइट जो हमारे जो मूवमेंट थी वो बहुत हमारे एक कॉल से इतना लोग बाहर आते हैं, इतना बुजुर्ग बच्ची सब वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल भी आ गई थी। तो उसी का जो हम उसका मेमोरी से हम उसका नेक्स्ट ईयर 2025 में भी हम लोग को उसका मेमोरी में हम लोग इकट्ठा हुई एकेडमी लास्ट ईयर वो ही वाला रेजिम के अगेंस्ट, तब भी कोई हमको ये बोला कि ये आप नहीं कर सकते, ये हमको नहीं बोला। और हमारे वही जो रिवॉल्यूशन जो मूवमेंट था वो एक हिस्सा बन गया कि अभी का जो भी बन गया वो उसको कैप्चर करके the movement helped in bringing down the past regime, but now they are telling us that you cannot do we had planned for a very small progressive aid is there, but वो लोग तो पुलिस हमको करने बोला कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पोस्टर में लिखा था कि हम दोस्त जमा दिखाने वाले थे। हमको पुलिस को हम लोग चिट्ठी भेज के नहीं बोला कि हम वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन वो हमारा फेसबुक पेज फॉलो किया और हमको फोन कर करके पूरा लास्ट 48 आवर्स फोन कर करके बताते थे आप आइए थाने में आइए बात करते, तो हम लोग नहीं किए। तो अभी आज कल रात को ईमेल भेज के बोला कि प्रोग्राम कैंसिल, एनीथिंग इफ यू वांट टू डू एनीथिंग can attract stringent legal action। तब भी हम लोग आएंगे, हम लोग हमारा मुंह बंद करेंगे कि अभी बोलना बंद करें। हम पुलिस का खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हम सब तो हमको राजनीतिक पॉलिटिकल वर्कर्स को हम है, हमारा काम है, ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अदर, तो इसलिए हम लोग पुलिस का बात सुनेंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे, हम अपने मुंह बंद करके उधर खड़े रहेंगे। और ये जो माहौल है ये बहुत ही शॉकिंग है, so I don't think it will last। शहबाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस एजुकेशन में मीडिया की कई बहुत तलाश है, और ये कहा जा सकता है कि इस हर एजुकेशन के बाद कुछ सबक लेके कुछ डेटा पैदा होते हैं, कुछ मेमोरीज होती है, कुछ सबक आता है। इस एजुकेशन में ये जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे पब्लिक आम आदमी है उससे अपने आप कनेक्ट नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह है कि आज़ादी की मूवी में
मीडिया ने अहम किरदार अदा किया, गांधी का अखबार था, भगत सिंह अखबार था, और कुछ वक्त खालिद इस्लाम का अपना अखबार था, जितने भी बड़े बड़े जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं सबके अखबार के सब उससे जुड़े हुए। आज का अखबार नौजवानों की ख्वाहिशात को, नौजवानों को पूरा करने के बजाय एक एस्टेब्लिशमेंट की आवाज बन गया है, उसमें किस तरह का प्रोडक्ट पैदा कर सकता है और इनका ये खिला जो दूरी पैदा हुई दूरी और गहरी होती है, क्या नुकसान हो सकता है? तो जिस तरह से आपने बात शुरू की आज़ादी को लेकर, बेसिकली अब देश के नौजवानों को गोदी मीडिया से आज़ादी मिलनी चाहिए। और गोदी मीडिया इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है कि रूरल्स जितने भी शासन में आते हैं, जो लोग राज करते हैं, उनके साथ हो जाने वाले मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको इंग्लिश में। तो अब इंडिया में मतलब पहले भी कुछ होता होगा, हमेशा जो है जितने भी मीडिया वाले कुछ न कुछ तो फेवर्स देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी के तमाम सवालों को दरकिनार करके हर ये, मैं एक साथ चाइना में रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि चाइना में तो ओपन है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट मीडिया ना के बराबर है, और जितनी बड़ी मीडिया हाउस है सभी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में, जिस जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता है वो सब लोग उसकी अच्छी अच्छी पूरी बताना शुरू कर देते हैं। तो कोई उसका ये नहीं करता कि कोई ड्राफ्ट पढ़ रहा है और उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है कि ये फायदा ये नुकसान है, ऐसा नहीं, सब फायदे ही होता है। उसके बाद जब मैं वहाँ से आया तो इंडिया में गोदी मीडिया अपने चरम पे पहुँच चुका था। 2016 के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे हर मामले में यही हो रहा है, और सिर्फ उस लेवल पे नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सीधा तान के हो रहा है, मतलब कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल भी हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। अभी इस साल जो है सुधीर चौधरी को कोई आइकन ऑफ द ईयर उस तरह का कोई अवार्ड भी दिया गया। तो ये इंडिया में जो है, तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तो अब कम से कम इतना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, या इनफैक्ट मैं उससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया को क्रेडिट दूंगा कि पिछले 12 सालों में या 2014 के बाद से एक सबसे अच्छी पॉजिटिव बात हुई है वो है इंडिपेंडेंट मीडिया। तो इंडिपेंडेंट मीडिया ने भी बहुत अच्छे से अपने काम को किया है सारे एडवर्स सिचुएशन के बाद भी, और यूथ को अवेयर रखा है, और जो लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं यूट्यूब से लेकर तमाम वेबसाइट्स को, और उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इंस्टाग्राम वगैरह उनका एक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप उनको चैलेंज कीजिएगा, अगर आप उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं देन इट इज ओके, लेकिन अगर आप चैलेंज कर रहे हैं देन दे हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म, और वो उसको यूज करके वो अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको एक्सपोज कर देंगे। तो वही वक्त आ गया है, अब उनके मन में वो डर नहीं है किसी गोदी मीडिया का, सरकार का, और वो जो यूथ है इंडिया का वो गोदी मीडिया से आज़ादी चाह रहा है, और ये आप इसको अनफॉर्चुनेट है, ये जो भी है वो यही सिचुएशन है। सर आपने ये जो गुरबत की जो फासले उसकी बातचीत की है, अफसर की जो रिपोर्ट उसमें भी बताया गया, और बाकी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट, और खुद कई कामी जनरेशन जो रिपोर्ट बता रही है कि भारत में रोजगार का प्रभाव पैदा हो रहा है, और जो नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं वो नौजवान भी रोजगार के मार्केट में फिट नहीं हो पा रहे। ऐसे में जो नौजवान की बड़ी फौज खड़ी हो जाती है, उस पूरी फौज को जिसका 12-13 साल में एक खास आइडियोलॉजी की रंगने की कोशिश की ताकि हमको मजहबी नामों में घेरे रहे। तो अब जो समाज एक बड़ा होगा जो उसमें लिफ्ट में ज़्यादा बड़ा रोल रहा है कि उसमें धीरे पार्ट के नौजवानों को बस सिखाने में कामयाब हो गए। तुम्हारा सिलसिला वो मजहब नहीं है, सिलसिला रोजगार, तालीम, एजुकेशन। अब आगे आपके पास क्या चैलेंजेस हैं जो चाहता है कि देश में जो है मजहब से ज़्यादा बुनियादी इंसानी जो नीड है उस पर बात इस तरह से आप लोगों को आगे ले जाएंगे। देखिए, पहली बात तो है कि ये जो बेकार नौजवान ये जो फौज बनी है, इस फौज को कहा गया था कि 2014 में तकरीबन 2 करोड़ नौकरी सालाना बनाई गई। अब हो गया 2026, तकरीबन 12 साल गुजार चुके हैं। तो ये जो नौजवान तबके के लोग हैं ये अब हिसाब, तो ये जो हमारे दौरान है उन्होंने जो कदम उठा करके हुकूमत को हासिल की है वो कदम की
निशान है वो निशान उनके साया के पीछे पड़ गए। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि मजहब को सामने रख करके तमाम जो मसाइल है लोगों का हल करें, क्योंकि उन्होंने अपने नजरियाती बुनियाद पर ये कहा था कि एक तबके के लोग के सामने मौका है, वो मौका एक दूसरे तबके के लोग मजहब की बुनियाद पर जाति की बुनियाद पर ले जाए, इसीलिए तकलीफें बढ़ रही, लेकिन हकीकत उससे दूर है। तो हकीकत का जो चेहरा ये जो उसके सामने जिस तरीके से पर्दा डाली थी वो पर्दा हट चुका है। और आप देखते पर्दा हटाने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और नौजवान को समझ में आ रहा है कि वो जो नौकरी का मामला है वो उसके मजहब से अलग है, मतलब उसका निजी मामला है, जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जाना चाहते हैं मुक्ति जा सकते हैं, लेकिन वो निजी दायरे पर रखना चाहिए। और समाजी जो सवाल है नौकरी का हो सकता है, स्वास्थ्य का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, तालीम का मामला है, जो सरकारी जो अलग अलग जो प्रोग्राम है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो मुद्दा हो, ये सब अलग चीज है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क नौजवान तक समझ रहा है सबको किस तरीके से देखना है, आंदोलन को किस तरीके से देखना है, और उसको जो लोग सरमायादार है, जो लोग ऊपर में रहते हैं, जो इस्लाम को की में बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं। मीडिया को इस्तेमाल किया, अलग अलग हमारे प्रशासन के जो स्तंभ है, हमारे सरकार कहती है कि हमारा मूल स्तंभ है, एक है हमारा विधान चुने हुए जो विधानसभा लोकसभा है, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा है हमारा प्रशासन व्यवस्था, तीसरा है हमारा विचार व्यवस्था, और चौथा जो है संविधान में लिखा है, मीडिया दादी लगती है। इनमें जो फर्क है वो फर्क आ नहीं था। ऊपर का जो सोचे कि चारों जो स्तंभ है उनमें उसकी प्रकटीकरण हो रही है, उसके फल जो हो रहा है कि लोग दूध का दूध पानी का पानी समझ रहे हैं, रास्ता के लिए उतर रहे हैं और अपना मजहब को जो मर्यादा देना है संविधान को है उस मर्यादा को दे करके ही लड़ाई में शामिल। लेकिन जो आगे आते हैं विश्व युद्ध भी होने लगे हैं, आगे फैलने का सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उनको जैसे झारखंड में देखा कि एक अच्छा मॉडल को सोसाइटी के लोग एक अलग बन देने की कोशिश, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए कंट्रोल से बड़ी बात ये है कि आंदोलन हो रहे, आंदोलन एक बार जब छिड़ जाती है तो आंदोलन का हकीकत उस बुनियाद पर तैयार होता है, तो बुनियाद उस समाज का जो वास्तविकता है उसका परिचय रखती है। अब आप कहिएगा कि रास्ते में लेनिन घूम रहे हैं, स्टैलिन घूम रहे हैं, उनको हमने झंडा पकड़ा के बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे कि ये समाजी हकीकत है। इस समाज ने वहाँ पर ऐसे एक शख्स को तैयार किया है जो लिखना जानता है, जो पढ़ना जानता है, जो साहित्य नहीं जानता है, वो आंदोलन, तो वो आंदोलन में अपना वास्तविकता को लाएगा और आंदोलन का वही चरित्र रहेगा जो वास्तविक परिस्थिति से तैयार होगा। इसके साथ हमारा कोई है आंदोलन होनी चाहिए, आंदोलन लक्ष्य तक पहुंचे और उस आंदोलन को उस तरीके से हमें सजानी चाहिए जो लक्ष्य जो मकसद है उस तक आंदोलन का चरित्र की बेसिक चर्चा करने की जरूरत है। ये सरकार ने हुकूमत ने समाज को उस तरीके से सजाया है जिसमें आंदोलन उस चरित्र को लेकर ही होगा। हमारी कोशिश है कि उस आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाना और वो कोशिश जारी रहेगी, हम सफल रहेंगे, असफल रहेंगे। किसानों ने आंदोलन किया, नरेंद्र मोदी जी को इतना टिकने पड़े, नौजवानों ने सारा हिंदुस्तान पर आंदोलित हुए, जंतर से आवाज उठा और हिंदुस्तान के सब गली कूचे में वो आवाज पहुंचे, नौजवानों को धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा। तो लक्ष्य तक पहुंचने वाला आंदोलन सफल आंदोलन रास्ता से आता है, वो समाज से उतर के आता है, और समाज में अगर इज्जत रहेगा, राजत रहेगा, समाज में जिंदगी रहेगी तो आंदोलन उसी रास्ते से आएगा, वो छीटे रहेंगे उस आंदोलन के गिरबान। उसको देखिए जाता निराश हम धर्म नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचे हैं और ये मिसाल है, मिसाल कायम रखते हैं। मैडम मेरा सवाल है कि बंगाल में या बाहर में
सेक्शन जुड़े हैं उसमें औरतें अच्छी खातून हैं, वुमेन्स हैं, बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, लेकिन औरतों के साथ वसूली बहुत ज़्यादा की गई है, दिल्ली में किया गया है और कोशिश की चूँकि बिहार में माँ ने राइटिंग से आती है और ये घर की जो उसके बाद में माँ ने बर्दाश्त किया और माँ ने लास्ट सपोर्ट भी किया। तो क्या औरतों का जो शिद्दत करना और उसकी हिफाजत करना कितना बड़ा चैलेंज है और खुद बंगाल में हमने देखा है कि जैसे आपको भैया वाला मामला है फिर मरीज वाला मामला, दोनों में अलग तरह का सोच समाज में भर जा रहा है। वहाँ पे रेगुलर एजुकेशन वहाँ पर एजुकेशन नहीं हो पाए, आवाज़ें आई छोटी आवाज़ें उसको शहरी घर पे सवाल नहीं आता। ये कितना बड़ा चैलेंज है कि शहर में जो वाक़ा होता है उसको बड़ा प्रश्न रहता है, एक रूरल एरिया में होता है छोटा होता है उसको इतनी बाजार में सिर्फ सोसाइटी सामने नहीं आता, तो ऐसे में समाज को जोड़ना और उनको मूवमेंट्स जुड़े रखना कितना बड़ा चैलेंज है। ये तो चैलेंज है, लेकिन ये भी सही है कि हम लोग जब डिटेल का नाइट किया हम लोग सोचा नहीं कि ऐसा ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा लोग आए थे कि वो लाइफ में पहली बार आए, तो ये जो मन में जो है वो टूट गया, बाहर आने के लिए जो बाधा है वो टूट गया। तो इसीलिए और जेन ज़ी का जो आंदोलन था ऐसा ही है कि उसका साथ विजिट किया गया है पुलिस से, लेकिन वो टूटी नहीं, वो रुकी नहीं, वो आ गया এবং जो एक বাংলায় যে যে মেয়েরা যে বাইরে আসছে আমাদের যে জির মধ্যে এই ভাবটাও নেই, ধর্মের ভাব নেই, লিঙ্গের জেন্ডারের ভাব নেই, এটা আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে দেখছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নির্মিত ভারত জাগে, নির্মিত ভারত জাগে না, যে ভারত ছুঁয়ে নেই আসি ভারত, সেই ভারত জেগে গেছে। ফলে মেয়েরা যে কোনো জায়গাতেই মেয়েরা কিন্তু পিছিয়ে থাকবে, এটা ঠিক যে সোসাইটিতে মেয়েদের বাড়িতেই পিছিয়ে রাখা হয়, কিন্তু সেটা কতক্ষণ আমি ছেলেদের কথা শুনবো, যখন আমার মধ্যে সেই বাধাটা কেটে যাবে, আমি যখন নরেন্দ্র মোদীর কথা শুনবো না আমি আমার বাবার কথা শুনবো, আমি তো বুঝেই গেছি যে আমাকে শুনবার জন্য আমাকে আর কিছু শোনাতে হবে। তো এটা চ্যালেঞ্জ, ঘরে ঘরে চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ ভেঙেও যাচ্ছে, যেটা আমরা 2024-এ দেখেছি যে চ্যালেঞ্জ ভেঙে গেছিল, লক্ষ লক্ষ মহিলা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন এবং যে জেনজির আন্দোলনেও আমরা দেখেছি মেয়েরা কারোর থেকে কম নয়, সবাই অনেক নিয়েছিল। যতই মেয়েদের সব রকমভাবে মারা, ছেলেদের যেরকম মারা যায় মেয়েদেরও মারা যায়, তার সঙ্গে মেয়েদের সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা যায় বেশ করে, তো তাতেও এরা থামেনি এবং এই সব মিলিয়ে একটা पॉजिटिव शर्मा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मीडिया लीक हो रही है, डिसीजन हो रहा है, उस डिसीजन के बावजूद मीडिया ने अब तक अपना कोई जैसा कि अपने आप को नियंत्रित करना या सूचना ज्ञान दे सकते हो, यही बड़ी गलती है। आप अगर देखें बंगाल की मीडिया को देखें, राव बड़े अखबार में जो लेफ्ट के दौर में ममता जो बिल्कुल लिबरल चेहरा था, अब बिल्कुल बदल गया है। तो नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया अपने आप बदल रही है, उस डिसीजन को बदलाव है उसको और गंदे अंदाज में साइज कर रही है, तो इससे क्या उसका रिजल्ट होने वाला है? रिजल्ट तो हो चुका है, रिजल्ट ये हो चुका है कि ज़्यादातर लेगेसी मीडिया जो है वो बहुत खराब दौर से गुजर रही है। अभी एक बड़ा ग्रुप है समाज तक भी आता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया। अब उनको सभी तरह की दिक्कत आ रही है, उनको ऐड नहीं मिल रहे, उनको व्यूअर्स नहीं मिल रहे। व्यूअर्स कहाँ, यूट्यूब पे हैं, व्यूअर्स कहाँ, इंडिपेंडेंट मीडिया के पास में है, वेबसाइट पे है, वहाँ पे है, और या फिर सोशल मीडिया के पास में। तो ये जो मामला है कि आप अच्छा काम नहीं करिएगा, और खास करके जर्नलिज्म में मेरा तो अपना सीधा मानना है कि अगर आप जर्नलिज्म में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप जर्नलिज्म में गलत काम करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में दूसरे काम में रहिए, बिजनेस कीजिए, है ना। अगर आप फाइट नहीं कर सकते, लड़ने का मामला नहीं है, अगर आप सेक्रीफाइस करने का ये नहीं है, अगर आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग
ब्रेक नहीं करते तो जर्नलिज्म नहीं है। तो और वो सिर्फ एंकर का जो ग्लैमर है, टीवी का ग्लैमर जर्नलिज्म नहीं करने की। तो अभी जो पिछला जो दशक हो गया है इंडिया में, वो वही मीडिया में सबसे खराब दौर था, पर उससे बाहर आ चुका है और लोगों को रियलाइज हो चुका है जो ये जनता का प्रोटेस्ट था। इवन कुछ हद तक किसान आंदोलन में भी हुआ था। किसान आंदोलन में चूंकि वो पुराने लोग लड़ने वाले, उन लोगों ने अखबार निकाल लिया था, उस तरह से वो काम हो रहे थे। यहाँ पे यूथ है तो इन लोगों ने सोशल मीडिया का एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया को यूज किया। तो अब लोग समझ चुके हैं कि हमें, और उसी की वजह से ये हो रहा है कि जब आप सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो, लोग आपको वहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके साथ में रिव्यूज भी हो रहा है। तो ये उसी का है कि आप सही चीजें नहीं दिखा रहे हैं और लोगों को ये पता चल चुका है कि आप किसी काम के लिए नहीं है, आप आम आदमी की आवाज नहीं है। अब जो है बदलाव आ चुका है और होपफुली जो है ये आने वाले वक्त में और भी बड़े पैमाने पे तमाम जगहों पे दिखेगा। हाँ, जो लेगेसी मीडिया है उनको जो नुकसान हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो जो बची कुछ इज्जत है, जो बच्चे को चाहिए है, वो आप बस आप इतना रह जाएगा कि आप गवर्नमेंट के लिए बस जो जैसे गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज होता है, गवर्नमेंट का कुछ और जारी होता है, बस वही अपनी आप काम में उसी का कॉम्पिटिशन करते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पे ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि लेगेसी मीडिया तो आज भी, हालांकि उसके पास अगर वो व्यूअर्स बनाना चाहें तो उनके पास अच्छे व्यूअर्स रहेंगे, अच्छे हैं नंबर्स में, लेकिन जो है वो होती जा रही है दिन ब दिन। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ये है इसी वजह से। और मैं आज बताता हूँ, मैं पब्लिकली ये बताता हूँ कि इस साल का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया लेवल पे वन ऑफ द फ्यू पर्सन में मैं था जिन्होंने वो सर्वे फिलअप करके दिया था, जिसमें इस बार इंडिया में 157 रैंक में प्रेस फ्रीडम इंडिया आया। तो अब आप और कितना नीचे जाइए, अगर आपका सही से आकलन होगा तो आप मतलब इतना नीचे चले गए हैं, आप इसके बाद नीचे जाने की जगह नहीं है। तो आप फ्यूचर में क्या दे करके जा रहे हैं? हर आदमी जब थोड़ा सा लाइफ में समझदार होता है तो ये सोचता है कि फ्यूचर में आप क्या दे करके जाएंगे। तो ये जर्नलिस्ट को, मीडिया ऑपरेशंस को ये सोचना होगा कि वो देश के लिए क्या दे करके जाएंगे। बस आखिरी सवाल है, दो लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन सभा की आखिरी तस्वीर डॉक्टर अम्बेडकर की, उसमें उन्होंने कहा था कि अपनी आज़ादी से ज़्यादा आज़ादी की हिफाजत करना जरूरी है। तो 80 साल बाद आज तो आज़ादी की जो हिफाजत करते हैं, किस तरह से हम आज़ादी की हिफाजत कर सकते हैं? मैं समझता हूँ अम्बेडकर साहब की दूसरी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान में वन मैन वन वोट से जब वन मैन वन वैल्यू तक पहुँचेंगे, तब जाकर हिंदुस्तान की खुशहाली रहेगी, प्रेम रहेगा, इंसानियत के खिलाफ हमारा समाज। कैसे आज़ादी की हिफाजत कर सकते हैं? রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি, চিত্ত যেটা ভয় শূন্য উত্তর দেখছি। আমরা যদি ভয় না পাই, আমরা যদি সাহস করে থাকি, তাহলে আমাদের থেকে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে দিতে পারবে না। আজকে যে বাচ্চারা বলছে আজাদি, তারা বলছে বুক মারছে আজাদি, হ্যাঁ বললে কি আজাদি, না বললে কি আজাদি। এই যে অধিকারের কথা বলছে, নিজের অধিকার আর নিজের সাহস, এই দুটো নিয়ে যদি আমরা থাকতে পারি এবং আমরা যদি আমাদের পরবর্তী জেনারেশন তাকে শিখিয়ে যেতে পারি যে শাসকই হোক, আমি যদি ভয় না পাই, তাহলে আমার স্বাধীনতা তৈরি। मेरे हिसाब से राइट थिंकिंग पर्सन जो भी सोसाइटी में है उनके साथ खड़े होकर, अगर आप जेन जीज का पूरा एक तबका अगर राइट थिंकिंग कर रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, बदलाव चाहता है, तो उनके साथ खड़े रहकर आप आज़ादी को बचा कर सकते हैं और इसी तरीके से देश बेहतर होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और 80 साल बाद 80वें साल जब दाखिल हो रहे हैं आज़ादी की, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि हम देश से आज़ाद हैं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इकोनॉमिक तौर पर, एजुकेशन तौर पर, सोचने के तौर पर और लिखने के तौर पर, हर चीज़ में हम आज़ाद रहें। और उस आज़ादी की हिफाजत करने उसी वक्त होती है जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, डॉक्टर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, मौलाना आज़ाद, इन लोगों की जो सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाकर और समाज में एक दूसरे को बर्दाश्त करके अपनी आज़ादी
آپ سب کا بہت بہت شکریہ.